Hello students, welcome to the physics video lecture on the motion. This is the class 9th physics video lecture on the topic exercise questions of a NCERT textbook. तो ये सब पढ़ने से पहले हमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए और फॉर्मूलेज पता होना चाहिए। साथ साथ ही इक्वेशन ऑफ मोशंस पता होना चाहिए, ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए। तो चलो ये देखते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या क्वेश्चन है ठीक से। तो एथलेटिक्स कंप्लीट द राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक of diameter. This is 200 meter. What is given in the question? We can underline it. In a time of a 40 meter, what is the distance covered and displacement at the end of a 2 minutes and 20 seconds? This is the given. So distance, this diameter of the circular track equal to 200 meter, and to complete the one round, this time to complete one round equal to, this is the 40 seconds. And what is the distance and displacement covered in the time? This is the this total time 2 minutes and 20 seconds. So this 2 minutes and 20 seconds, we convert in minutes, it convert into the second, then it becomes a 120 second plus a 20, so total time is a 140 seconds. So question समझ लो. In this question, the athlete is moving in a circular track. Of diameter of the circular track AB, it is given at 200 meter. The radius कितना आएगा? Half of the diameter. Then distance covered in a one round. So this is the distance covered in a one round. एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? इक्वल टू 2 पाई आर. कितना आता है? 2 पाई आर. सो दिस 2 पाई इज ए 3.14 एंड रेडियस इक्वल टू 200 डायमीटर, रेडियस इज ए 100 मीटर आएगा. सो दिस इक्वल टू मल्टीप्लाई करो तो दिस विल बी 8, 2 और ये 6 और ये 2 0 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ आएगा डेसिमल पॉइंट. दिस इज इन ए मीटर. So this is the distance covered in a one round. So the number of rounds in 140 सेकंड. एक 140, एक राउंड के लिए 40 मिनट्स लगता है. एक राउंड के लिए 40 मिनट्स लगता है, तो 140 मिनट्स में कितना राउंड लगाएगा वो? तो दिस इक्वल टू 140 second divide by this is a 40, 10 cancel, this equal to 3.5 rounds लगाएगा. Total rounds will complete in a 140 seconds. He complete the 3.5 round, मतलब 3.5 rounds. So the total distance covered, total distance covered in a 3.5 राउंड्स. तो कितना डिस्टेंस होगा? एक राउंड का डिस्टेंस है 628 मीटर मल्टीप्लाई बाई 3.5 राउंड्स. मल्टीप्लाई करो तो आएगा दिस इज 2198 मीटर. देन पूछा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट एक राउंड करने के बाद
देखो, this is the first round. After the one round, again he come to the initial start, and after the second round, again he come to the original. This is the third, and they say after the half round he goes to the position B. यहाँ जाएगा और initial point हो गया. This is the initial और ये position हो गया final. So shortest distance between the initial and final position, this known as the displacement. तो displacement कितना आएगा? Displacement after कब 140 सेकंड इक्वल टू कितना आएगा? डायमीटर. अपोजिट साइड में आ गया, मतलब क्या आएगा? डायमीटर. और दिस इक्वल टू डायमीटर कितना है? दिस 200 मीटर. तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 200 मीटर और डिस्टेंस आ गया 2198 meter after the 140 second. So this is the first question. Easy है, समझ गया है. तो ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका. Joseph jogs from end A to other end B in a straight line of a 300 meter road in a 2 minute and 30 second. Okay, we will draw the diagram. This is the starting point, और यहाँ this is the straight road to the point B. You start from the point A and end at that. This distance is a 300 meter in a straight road. This is a 300 meter in a straight road. And for the time he take the time t equal to कितना? 2 minute and 30 second. 30 second. तो ये टाइम कितना हो गया? ये 120 सेकंड सभी सेकंड में करेंगे और ये 30. So this time is 150 सेकंड लगा. आसान. Then turn around. उसके बाद उसने क्या किया कि come to the back. He turn around and jogs 100 meter back to the point C. यहाँ पहुँचने के बाद उसने क्या किया? फिर बैक चला गया. कितना? 100 मीटर and reach to the point C. This distance is a 100 meter and time t equal to कितना लगा? 1 minute. in a 1 minute. This is the return. तो 1 minute मतलब t equal to कितना हो गया? 60 सेकंड हो गया. हाँ, मतलब he starts from the point A and goes straight 300 meter to the point B in a time of a 150 second, turn around and comes to the back to the point C, which is 100 meter at a distance and t equal to in a time 1 minute. So this total time यहाँ लिखेंगे. total time equal to this equal 150 plus ये 60 equal to 210 सेकंड. इतना टाइम लगेगा ये सब कंप्लीट करने के लिए. अब देखो क्या करना है. देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ एंड एवरेज वेलोसिटी. व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी जॉगिंग फ्रॉम, पहला लिखा है, फ्रॉम A to B. A to B जाएगा तो कितना उसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद करो. एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम. ये फॉर्मूला है. टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? यहाँ से शुरू किया उसने, यहाँ तक गया, कितना हो गया? 300 और फिर वापस आया, कितना हो गया? 400. सो 300 प्लस वापस 100 डिवाइड बाई पहला टाइम कितना लगा? जैसे टोटल टाइम लगा, डायरेक्ट लिखता हूँ मैंने, यहाँ ऐड करके रखा है 210. तो दिस इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 210. 0 cancel. The average speed equal to 40 divided by
21 मीटर पर सेकंड। उसी टाइम में एवरेज वेलोसिटी कितना था? एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके 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 ओके, आई मेड द मिस्टेक। यहाँ एक छोटा सा मिस्टेक हुआ, हमें ए टू बी निकालना है, मैंने सी का निकाला, तो ये नहीं चाहिए हमें, क्योंकि ए टू बी कितना है? 300। टाइम कितना लगा? टाइम लगा 150। सो दिस इज ए, ये नहीं चाहिए, ये भी गलत है, तो हम दूसरा करेक्ट करते, दूसरा पेन से लेंगे। ये यहाँ से गलती किया है, तो ये हो गया टाइम। टोटल टाइम कितना था? टोटल टाइम 300, और टोटल डिस्टेंस 300 और टोटल टाइम लगा 150। डिवाइड करो तो ये आता है 2 मीटर पर सेकंड। ए टू बी, ए टू बी, क्योंकि पहला क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द टाइम इन ए टू बी, तो इसीलिए हमने ये टोटल लेना नहीं है, का ए टू बी लेना है। तो डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। ए टू बी, ए से बी तक कितना है डिस्प्लेसमेंट? 300, स्ट्रेट लाइन है, और टाइम कितना लगा? 150। तो दिस 2 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड बोथ आर द सेम in case of the when body is moving in a straight direction. स्ट्रेट डायरेक्शन जाता है तो इतना आएगा। ओके देन नेक्स्ट लिखा है बी पार्ट में, देखो व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी व्हेन इट इज मूविंग ए टू सी जाएगा तो कितना लगेगा? तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई कितना? टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना गया? देखो ए से शुरू किया इसने, बी तक गया 300, फिर वापस सी पॉइंट पे आ गया 100, मतलब टोटल डिस्टेंस हो गया 300 प्लस 100 डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना लगा मुझे करने के लिए? 210। हमने ये टोटल टाइम यहाँ करके रखा है। सो दिस इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 210, एक चला गया ये। सो दिस एवरेज, ये भी लिखा मैंने, स्पीड इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 21 मीटर पर सेकंड। अभी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। कौन सा ये? इस साल से टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ए टू सी, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, और फाइनल कहाँ पहुँच गया? सी में, दिस इज द फाइनल। तो इनिशियल और फाइनल कितना हो गया? ये यहाँ से बी पॉइंट कितना है? 300, और फिर वापस आके यहाँ कितना हो गया? 100। फाइनल पॉइंट इतना 100 पीछे आ गया, मतलब ए टू सी डिस्टेंस हो गया 200। तो यहाँ लिखते हैं हम 200 डिवाइड बाई टाइम कितना? 210, ये कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी 20 डिवाइड बाई 21 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ था, ए टू बी की जगह ए टू सी किया था, और वो करेक्ट कर लो तो ये बराबर हो जाएगा। ओके देन we'll go to the next numerical. This is the numerical third. Abdul, while driving from the school compute the average speed of his trip is when he moves from the home to school. This is a home to school with the average speed is home to, this is the average speed equal to कितना लगा? This equal to 20 किलोमीटर पर आवर।
or this we can write this is a S1, we can take this is S1, और उसके लिए टाइम कितना लगा रहा, टाइम to move to go to the home to school, this equal to suppose it is a T1, and in the return trip again he come back along the same route. There is a less traffic and average speed is a 40 km per hour. For the return trip, for the return trip in the same route there is a less traffic, average speed is a 40. We can take this average speed S2 equal to 40 km per hour, and time is a required, it is a T2, टाइम इज ए T2. अब स्पीड इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला क्या है स्पीड का, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय क्या होता है, टाइम. सो टाइम इक्वल टू क्या आएगा, टाइम इक्वल टू, स्पीड इधर जाएगा, स्पीड यहाँ आएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय क्या आएगा, स्पीड. यहाँ भी टाइम t इक्वल टू या T1 इक्वल टू डिस्टेंस कितना गया, मान लो इट इज x, ये स्कूल टू होम इट इज x डिस्टेंस, दिस इज स्कूल टू होम इज x डिस्टेंस, तो डिस्टेंस x और उसका स्पीड कितना है 20. इसी तरह से यहाँ T2 इक्वल टू डिस्टेंस x, वापस भी उसी रूट से आया तो डिस्टेंस x, स्पीड कितना है 40. सो यहाँ लिखेंगे टोटल टाइम, क्या लिखेंगे, दिस इज ए टोटल टाइम इक्वल टू T1 प्लस T2, कितना टाइम है, x डिवाइड बाई 20, x डिवाइड बाई 40, एलसीएम कितना आएगा 40, यहाँ कितना 2x प्लस ये x, दिस इक्वल टू 3x डिवाइड बाई 40. अभी हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, हमें निकालना है एवरेज स्पीड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड. तो फॉर्मूला क्या है एवरेज स्पीड का, जस्ट याद करो, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम, आएगा टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कितना किया, होम टू स्कूल कितना है x, और स्कूल टू होम x, मतलब x प्लस x आएगा, और टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम हमने यहाँ टोटल टाइम लिखा जाने का आने का, दिस इज ए 3x डिवाइड बाई 40, x प्लस x कितना आएगा 2x, और 3x डिवाइड बाई 40, x का कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग टर्म कितना आएगा 2 डिवाइड बाई 3, और ये उल्टा हो जाएगा, क्या आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 1. चलो इसको मल्टीप्लाई करते, 40 इंटू 2 इट इज 80 डिवाइड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3, 8 2 ज़ा 6, ये 2 बच गए यहाँ से, और 6 3 ज़ा 18, 6.6 किलोमीटर पर आवर. यहाँ यूनिट कन्वर्शन नहीं किया, एज इट इज़ लिया, इसीलिए आंसर कैसा आएगा किलोमीटर पर आवर. यह कन्वर्शन का ज़रूरत नहीं था, इसीलिए कन्वर्ट नहीं किया. तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ये हायर जैसे 11th में जाते तभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखो, ये अच्छा क्वेश्चन है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
A motorboat starting from the rest, जैसे वर्ड आ गया ये न्यूमेरिकल पढ़ा हमने, एक इम्पोर्टेंट वर्ड आ गया है ये रेस्ट में अंडरलाइन किया है, रन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, टेक द on the lake, accelerate straight line at a constant, कितना मिला ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये दिस इज द टाइम। व्हाट इज द गिवन, न्यूमेरिकल ठीक से पढ़ो, अंडरलाइन करो और गिवन लिखो। व्हाट इज द गिवन, गिवन क्या दिया है, गिवन गिवन क्या क्या है, एक तो स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, दिस इज अ सेंटेंस, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी इसका 0, u इनिशियल इक्वल टू 0, एक्सेलरेट कितना एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड टाइम कितना लगा, जस्ट टाइम इक्वल टू 8 सेकंड। पूछा क्या है अभी, दिस इज द गिवन, पूछा क्या है, पूछा है क्या पूछा है, हाउ फार डज बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, कितना दूर जाएगा, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड दी व्हाट इज द यस। तो ये टाइम वाला इक्वेशन, दो इक्वेशन हमारे पास, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और तीसरा इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। कौन सा इक्वेशन लगेगा इसके बारे में सोचो, इसमें टाइम नहीं है लेकिन यहाँ टाइम दिया है, और इसमें टाइम है, यू भी है, इसमें एक्सेलरेशन है और टाइम है, तो ये डिस्टेंस वाला, ये इक्वेशन को हम सेलेक्ट करेंगे। तो एस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 और टाइम कितना लगा 8 सेकंड, और ये हाफ एक्सेलरेशन कितना है 3, और टी का स्क्वायर है, इसका मतलब 8 का क्या लेना है स्क्वायर, u इंटू 0 इंटू 8 ये 0 प्लस हाफ इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 64, तो दिस इक्वल टू 2 से डिवाइड करो तो दिस विल बी है 32 आएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और ये 3 3 ज़ा 9, तो दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल, यस इज इक्वल टू 96 मीटर। छोटा सा क्वेश्चन था, आसान समझ गए होंगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ड्राइवर ऑफ द कार ट्रैवलिंग 52 किलोमीटर पर आवर applies a brake and accelerate uniformly in a opposite direction, मतलब दिस इज ए ब्रेक अप्लाई किया तो स्पीड क्या होगा डिक्रीज, मतलब डिक्रीजिंग द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट ब्रेक अप्लाई किया, एक्सेलरेट डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन, ओके। कार स्टॉप्स इन ए 5 सेकंड के बाद कार रुकी, अनदर ड्राइवर गोज ऑन ए, दूसरा जो ड्राइवर था 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, ही इज ऑल्सो अप्लाई द ब्रेक एंड कार ब्रेक स्लोली एंड कार स्टॉप्स आफ्टर दी 10 सेकंड के बाद कार रुक गई। On the same graph paper, plot the speed versus time graph for the two cars. Which of the two car travel faster after the brake were applied? कितना faster? These two cases are the, we can write this is the driver A. Driver A क्या किया, is traveling with the speed, we can write this s1, इसका स्पीड कितना था, s1 इक्वल टू 52 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लगा इसका, टाइम इक्वल टू t1 लिखेंगे उसको, यानी 5 सेकंड, और फॉर द ड्राइवर बी, तो जो ड्राइवर बी था वो कितना स्पीड से जा रहा था 30 किलोमीटर पर आवर, और उसने भी ब्रेक लगाया और उसका कार स्टॉप हो गया आफ्टर दी 10 सेकंड, दिस इज द गिवन। तो ये डेटा से हमें क्या करना है, डिस्टेंस स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करना है, और उस ग्राफ पे विच ऑफ द टू कार ट्रैवल फर्दर आफ्टर अ ब्रेक, कौन सा कार ज़्यादा डिस्टेंस चला गया वो हमें निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले ये ध्यान दो
यहाँ जो दिया है, जो डेटा दिया है, व्हाट इज द डेटा इज गिवन, दिस इज इन किलोमीटर पर आवर, और ये कैसे दिया है, सेकंड में दिया। ये भी किलोमीटर पर आवर, ये सेकंड में चलेगा नहीं। तो हमें क्या करना है, इसका स्पीड S1 को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ 52 किलोमीटर का मीटर करना है, तो कितना से मल्टीप्लाई करना, 1000 से, और ये डिवाइड बाई हावर्स की, दिस इज 1 आवर, तो सेकंड में करना है तो क्या करना है, 1 आवर का सेकंड बनता है 3600 सेकंड। अभी इसके 2 जीरो इसके साथ कट जाएंगे, ये बचा क्या है 56, इसको डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करो तो 2, और ये 26 हो जाएगा, और ये 18, फिर 2 से 9, और ये 13, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 10 डिवाइड बाई 9, मतलब S1 दिस इक्वल टू 130 डिवाइड बाई 9, ये आएगा, और डिवाइड करो, 9 1 ज़ा 9, कितना बचेंगे 4, 40 आ जाएगा, क्या आएगा 4 से 36 होगा, 4 बचेगा, ये 4, ये हो गया मीटर पर सेकंड। और इसका टाइम निकालेंगे, T1 इक्वल टू 5 सेकंड। तो ये डेटा एक यूनिट में मिल गया, ये मीटर पर सेकंड है, ये सेकंड में, ये देखो ये सब एक ही यूनिट में मिल गया। अब इसी तरीके से ड्राइवर बी का 30 किलोमीटर पर आवर है, सो दिस इज ए 30 इंटू मीटर करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई हावर्स का कितना 3600 सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। 2 जीरो इसके साथ कट जाएगा, ये मैं इसका ये, और 3 का ये, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और इसको डिवाइड करो तो क्या बचा है, ये अभी 100 डिवाइड बाई 12, तो 12 8 ज़ा 96, फिर 4 बचेंगे, 4 मतलब हो गया 40, 40 12 12 3 ज़ा 12 3 ज़ा 36, 12 3 ज़ा कितना आ जाएगा 36, और फिर 4 बचेंगे, तो ये दो एक डेसिमल करते हैं, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड। और इसका टाइम कितना दिया, T2 इक्वल टू दिस टाइम इज गिवन 10 सेकंड। और इसके लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है, हमारे पास दो डेटा मिला, क्या क्या मिला, तो याद रखते हैं S1 का स्पीड कितना है 14.4, और S1 कितना है 14.4 मीटर पर सेकंड, और ये टाइम T1 5 सेकंड का है। यहाँ S2 कितना है, दिस इज द S2 इक्वल टू 8.3, और ये T2। चलो दूसरा ग्राफ पेपर पे देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो जो डेटा हमारे पास है वह हम लिख लेते हैं पहले। दिस इज ए फर्स्ट केस, in a first case S1 equal to 14.4 मीटर पर सेकंड, और टाइम इसका लगा था T1 इक्वल टू कितना टाइम लगा, दिस इक्वल टू टाइम लगा 5 सेकंड, और S2 इक्वल टू ये मिला 8.3 मीटर पर सेकंड, और इसका टाइम लगा T2 इज इक्वल टू 10 सेकंड। अब यहाँ देखो हमें कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है, वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ, कौन सा ग्राफ, स्पीड वर्सेस टाइम। तो हम एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं, यहाँ देखो ये यहाँ लेंगे, दिस इज ए टाइम एक्सिस, और टाइम का यूनिट क्या है, जिससे एक्स एक्सिस, और टाइम लेंगे सेकंड में, और ये जो एक्सिस है यहाँ लेंगे इस एक्सिस पे, दिस इज द वाई एक्सिस, क्या लेना है इसे, जैसे लेना है स्पीड, और इसका यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड। अब हमें प्रॉपर स्केल सेलेक्ट करना है, यहाँ इस एक्सिस पे हम इसको यूज़ करेंगे, तो ये आएगा इस पॉइंट पे, दिस इज द ओरिजिन, 0 एक्स एंड वाई एक्सिस का ओरिजिनल वैल्यू 0। तो ये एक्सिस
इस एक्सिस पे स्पीड लिया, यहाँ अगर मैं स्ट्रेट लाइन खींचूंगा तो वो स्ट्रेट नहीं आएगा, इसीलिए मैं डॉट से बना रहा हूँ पहले। तो हम लोग स्केल यूज करके स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओके, ये हो गया एक्स एंड वाई एक्सिस। अब हमें कितना स्केल यूज करना है, यहाँ देखो 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक वेरी करना है। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 सेकंड, दिस इज द 1, ये 2, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, और ये हो गया 10, 11, थोड़ा ज़्यादा लिखते हैं, और ये 12, बस हो गया। तो ऑन दी यहाँ लिखेंगे स्केल, क्या लिखेंगे, ऑन एक्स एक्सिस एक्स 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या लिया, 1 सेकंड। अब वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू स्केल लिखना पड़ता है। अब वाई एक्सिस पे क्या लेना है, स्पीड लेना है। देखो ये स्पीड में क्या हो गया, कितना 14.4 से लेकर ये 8.3 तक ये वैल्यू आना चाहिए, तो यहाँ से 0 हमने ये लिया, तो यहाँ लिखते हैं 4, फिर ये 2 लाइन का 4, तो यहाँ आएगा 8, यहाँ फिर आएगा 12, यहाँ आएगा 16, और ये हो गया 20, काफ़ी है। और दिस इज इन ए मीटर पर सेकंड। चलो कलर चेंज करके देखते हैं इसका, रेडी लेते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट अपन फर्स्ट ड्राइवर का लिखेंगे, ड्राइवर ए कितना है 14.4, जब टी 14.4 इस एक्सिस से, ये 12 यहाँ है, और यहाँ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 14, और ये 14.4 इस सम भी यहाँ पॉइंट आएगा ये, और यहाँ से क्या करना है, इसको टाइम लेता है 5 सेकंड। तो इसका ग्राफ इस तरीके से आएगा, अगर स्ट्रेट नहीं आएगा, स्ट्रेट खींचूंगा तो इसलिए मैं डॉट से दिखा रहा हूँ, तुम लोग स्केल से स्ट्रेट बनाओ। दिस इज ये हो गया इसका ग्राफ स्ट्रेट। इसका बन गया ये ड्राइवर ए। और ड्राइवर बी के लिए देखते हैं, बी कहाँ से गया 8.3, तो ये इसका गया यहाँ इस एक्सिस पे, यहाँ देखो यहाँ ये इसका आधा करेंगे तो 10 आ गया, यहाँ 9 होगा, तो ये 8 पॉइंट यहाँ समझे, यहाँ से लेकर यहाँ आता है 10, ये 10। दूसरा पेन यूज करते ये इंक यूज करेंगे, दिखने में अच्छा रहेगा। और यहाँ एक पॉइंट है, और दूसरा कहाँ है इसका 10 सेकंड के बाद यहाँ है, तो ये दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन तुम स्केल यूज करके बनाओ। तो ये 2 ग्राम है, अभी इतना एक्यूरेट नहीं। तो और क्वेश्चन पूछा है इसने, क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द टू कार्स, ये ग्राफ बन गया, विच ऑफ द टू कार ट्रैवल फर्दर आफ्टर द ब्रेक अप्लाई। ब्रेक अप्लाई तो दोनों ने एक साथ ही किया, दोनों ने एक साथ ही ब्रेक अप्लाई किया, तो कौन सा कार ज़्यादा गया, ये कैसा पता चलेगा। तो हमने ये पढ़ा है इसके लिए कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल इक्वल टू एरिया ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर, डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर। तो एस पहले ड्राइवर ए का ड्राइवर का निकालेंगे, हाफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे, कितना आएगा पहला एरिया। तो अगर ये ट्रायंगल देखें पहले ए का, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बेस 5, और हाइट कितना है
ये हाइट हो गया, हाइट कितना हो गया 14.4, हाफ इंटू 14.4 इंटू बेस 5, इसको डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 7.2 और मल्टीप्लाई करो 0 1 और 5 से बजा 35 प्लस ये 36, ये गया 36 मीटर। दूसरे का एरिया फाइंड करते हैं, तुम ग्राफ के ऊपर मत करो, दूसरे जगह यूज करो। बी ड्राइवर का एरिया कितना हो गया, डिस्टेंस ट्रैवल यस बाई ड्राइवर ऑफ ए कार बी दिस इक्वल टू एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बेस इंटू क्या होता है हाइट, हाफ। बेस कितना है इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 10, सो हाफ इंटू 10 मल्टीप्लाई बाई हाइट, हाइट इज 8.3। सो ये 5 से डिवाइड करो तो दिस इक्वल टू एस इज इक्वल टू 5 थी जा 15 1 8 8 5 8 5 जा 40 और ये 41.5 आएगा मीटर। तो which will be travel fast more distance, the second driver is the driver B travel the longer distance, driver B driver कौन सा B travel the longer distance। समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, चलो आप देखो, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। In a figure alongside shows the distance time graph. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये क्या दिखा, इस एक्सिस पे वाई एक्सिस पे क्या है डिस्टेंस यहाँ, और ये किलोमीटर, और टाइम कैसा है आवर्स में दिया है। ओके, अब 3 ऑब्जेक्ट ए बी और ये सी, स्टडी द ग्राफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, द फर्स्ट व्हाट इज फर्स्ट, विच ऑफ द 3 आर ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कौन गया। तो ए का आंसर क्या लिखेंगे फास्टेस्ट, कौन फास्टेस्ट है, हु विल ट्रैवल द फास्टेस्ट। फास्टेस्ट का मतलब क्या होता है स्पीड, और स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई क्या आता है टाइम। सो डिस्टेंस, सबसे ज़्यादा जिसने डिस्टेंस ट्रैवल किया कम समय में वो फास्टेस्ट हो गया। कम समय किसको लगा, बी को देखो यहाँ इतना टाइम लगा, सी को कितना इतना, ए को भी लगभग इतना, मतलब किसको ज़्यादा लगा ए और सी को, बी कम समय में गया, डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल है तीनों का, सी का थोड़ा ज़्यादा है लेकिन उसको समय बहुत ज़्यादा लिया, तो इसका मतलब हु इज ए फास्टेस्ट, सो बी इज ए फास्टेस्ट। समझ में आया। और नहीं तो जिस ग्राफ का ये जो एक्स के साथ जिसका एंगल है डिस्टेंस टाइम में ग्राफ में, जिसका एंगल ये ग्रेटर है थीटा विद एक्स एक्सिस, जिसका एंगल ज़्यादा है दैट बॉडी विल बी मूव फास्टेस्ट, ऐसा भी याद कर सकते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आर ऑल 3 आर एवर एट द सेम पॉइंट ऑन दिस रोड, कभी तीनों एक साथ आएगा कभी नहीं, क्योंकि अलग दे मिट ईच अदर बट इन डिफरेंट पॉइंट्स, ये दोनों यहाँ मिले, कौन सा बी और सी यहाँ मिला, और ये और बी यहाँ मिला, और सी और ये यहाँ मिला अलग अलग। अगर तीनों एक ही जगह मिलते थे तो तीनों ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता था, एक ही आता था, वो एक साथ मिलते थे, इसीलिए दे नॉट मीट at same time on the road। तो तीसरा क्वेश्चन देखता हूँ, how far C has traveled when B and A passes, ये B passes A, how far the C travel, C कितना दूर गया था जब B ने A को पास किया था, B ने A को कब पास किया था, यहाँ पास किया था यहाँ, तो टाइम क्या था तब, अगर टाइम देखेंगे तो इस एक्सिस पे यहाँ से, तो ये आएगा टाइम, यहाँ टाइम ये 8 है ये 12 है, इसका मतलब 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, टाइम नहीं सॉरी, ये डिस्टेंस, जब 10 किलोमीटर डिस्टेंस गए थे तब ए और बी मिले थे, तब सी कहाँ था, इसी के नीचे आ जाओ,
तो हाउ फार सी ट्रैवल व्हेन बी एन ट्रैवल्ड, मतलब कितना दूर गया था। इसको अगर नीचे करेंगे तो यहाँ यहाँ मिलेगा, तो ये आएगा सी, तब यहाँ था, यहाँ था, तो ये कितना आएगा, ऑलमोस्ट दिस इज ए 8.2 किलोमीटर। दिस कब था। और डी का क्वेश्चन क्या है, हाउ फार द बी ट्रैवल्ड बाय द टाइम इट पासेस टू सी। सो जब सी को पास किया उसने तब डी कितना डिस्टेंस ट्रैवल, हाउ फार डी एस ट्रैवल्ड। सो डी ट्रैवल ऑलमोस्ट दिस इज 10 किलोमीटर, कितना 10 किलोमीटर व्हेन ही पासेस टू द, हाउ फार हैज बी ट्रैवल्ड बाय द टाइम इट पासेस टू सी। जब बी ने सी को पास किया था तब वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, तो 10 किलोमीटर इतना। ओके, आसान क्वेश्चन है, अगर आप समझ में आया तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कैलकुलेशन के लिए स्पेस छोड़ा था मैंने, लेकिन वो उसी में कर पाया। ये बॉल इज ए ड्रॉप जेनेटली फ्रॉम द हाइट ऑफ ए 20 मीटर। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, इसको इरेज कर रहा हूँ। The ball is a drop from the height of a 20 meter and increases the uniformly at 10 मीटर पर सेकंड। अभी 10 मीटर पर सेकंड क्या है, ये मीटर पर सेकंड सर किसका होता है, ग्रेविटी, और दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, बोलते हैं इसे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है। और हाइट कितना है, हाइट इक्वल टू 20 मीटर, ये दिया है। और with what velocity it strikes to the ground, यहाँ से कोई एक ऑब्जेक्ट छोड़ दिया, वो ग्राउंड पे आकर हिट किया, तो यह हाइट था 20 मीटर, यहाँ से छोड़ा था इस पॉइंट से और आके यहाँ हिट किया उसने, यहाँ से हिट किया, तो विथ व्हाट वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी कितना था, व्हाट इज द बिफोर, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, स्ट्राइक द ग्राउंड, आफ्टर व्हाट टाइम इट विल बी रीचेस, और किस टाइम पे ये पहुंच गया। अब इस क्वेश्चन में हमें दो पार्ट निकालना है, क्या निकालना है, एक तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ छोड़ा तो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, जब ये हाथ में था तो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0, और ये फाइनल वेलोसिटी निकालना। हमारे पास तीन इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरा, और तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ देखो, हमें पहले इसमें v फाइंड करना है। अगर ये यूज़ करते तो चलेगा क्या, हमारे पास ये है और लेकिन टाइम नहीं है, तो ये इक्वेशन पहला आंसर के लिए नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि टाइम नहीं है। और v निकालेगा लेकिन a और t दोनों भी नहीं है, ये अब है t नहीं है। अगर इसको यूज़ करते तो यहाँ भी टाइम नहीं है, इसका मतलब हमें बिना टाइम वाला इक्वेशन थर्ड यूज़ करना पड़ेगा, e इक्वल टू ए। तो चलो पहला करते हैं, पहला क्वेश्चन के लिए फर्स्ट क्वेश्चन इसको यूज करेंगे, तो वी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, वी फाइंड करना है, वी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 प्लस 2a कितना है 10 और डिस्टेंस कितना है 20, ये सब दिया है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 20 400, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, v इज इक्वल टू क्या आएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो हमें 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इससे ये हिट करेगा ग्राउंड को, तो ये वैल्यू मिल गया। चलो अब टाइम की बात करते हैं, इसको यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा। टाइम का पहला इक्वेशन देखो, इसके टाइम का इक्वेशन है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v कितना है 20, u कितना है 0, एक्सेलरेशन कितना है 10, और हमें क्या निकालना है टाइम t। सो दिस 20 इक्वल टू 10t और t इक्वल टू 10 इस साइड आएगा तो क्या होगा डिवाइड, 20 डिवाइड बाई
10. So this equal to कितना आएगा? दिस इज ए 2 सेकंड. कितना आंसर हो गया? 2 सेकंड. आसान क्वेश्चन था ये तो, लेकिन ध्यान रखो डिफरेंट. चलो ये क्वेश्चन देखते हैं. स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन द कार एज शोन इन द फिगर, और फाइंड आउट द हाउ फार द कार ट्रैवल इन द फर्स्ट 4 सेकंड. 4 सेकंड में कितना कार ट्रैवल किया, ये कैलकुलेट करना है. The shaded area of the graph that represent the distance traveled by the car during this period. तो कितना ट्रैवल किया? तो ये दिस शेडेड एरिया, ये जो शेडेड एरिया है उतना, अगर इसका एरिया फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा? डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम. विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन. अगर यहाँ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में क्या आता है? इन्हें यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन में होता है जब बॉडी ट्रैवल करता है तो वो क्या, कैसा यूनिफॉर्म मोशन, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यहाँ देखेंगे, यहाँ से ये आफ्टर दी 6 सेकंड, यहाँ से देखो, यहाँ से पहले ये इतना डिस्टेंस गया. फ्लैट ग्राफ मतलब डिस्टेंस ट्रैवल, स्पीड क्या हो गया? कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट एंड टाइम चेंजेस. तो मोशन यूनिफॉर्म आफ्टर दी 6 सेकंड. आसान है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल फॉर द एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज. कौन सा सिचुएशन पॉसिबल है? पहला कैसे क्या लिखा है देखो. एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी. अगर ऐसा सिचुएशन देखो, ये यहाँ एक, दिस इज द ग्राउंड, और यहाँ से एक बॉडी सीधा ऊपर फेंक दिया, सीधा ऊपर फेंक दिया, ये इसको. तो यहाँ जब पहुँचता है तो यहाँ एक्सेलरेशन कितना है इसका? दिस एक्सेलरेशन इज ए ग्रेविटी, और दिस नोन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. बट यहाँ मैक्सिमम हाइट में जब पहुँचता है तब इसका वेलोसिटी कितना होता है? 0 होता है, और उसके बाद ये नीचे आने लगता है. इसका मतलब when it is at its maximum height, when body is projected in a upward direction, and when its height is a maximum, at that time velocity becomes a 0. यहाँ लिखा है velocity is a 0. and constant acceleration is a constant, that is acceleration due to the gravity की वजह से कितना acceleration. तो ये acceleration gravitation lesson में हम पढ़ेंगे कितना कैसे. तो this is the situation when body is a projected upward at the maximum height, the velocity is 0 and acceleration is a constant. So चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. Object is moving in a certain direction. Object moving in a certain direction with the acceleration in the perpendicular to direction. Acceleration is a perpendicular to the direction, and it is a moving in a certain direction. Acceleration is a perpendicular to the direction. When body is moving in a circle, circle में घूमता है तो कैसा होता है देखो. यहाँ this is center, और इसका acceleration कैसे रहेगा? This is the tangent, this is the acceleration. Acceleration is a perpendicular to the direction. इसका direction कहाँ है? यहाँ. और उसका acceleration is direction. No, this is not a case. इसमें नहीं आएगा. लेकिन when body is thrown in a horizontal direction में, अगर ऐसा थ्रो किया इस डायरेक्शन में, तो when moving, ये बॉडी हमने थ्रो किया with the velocity, acceleration is perpendicular to the direction. Body moving in a certain direction. This is moving with, suppose 20 meter per second in this direction, horizontal direction. कौन सा डायरेक्शन है? horizontal. तभी एक्सेलरेशन कैसा है इसका? इसका डाउनवर्ड. जब बॉडी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट जा रहा है तो इसका डायरेक्शन कहाँ है? एक्सेलरेशन इज ए परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन. ये एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, इट इज ए परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन. दिस इज द सेकंड सिचुएशन. आई होप ये समझ में आया होगा. अब दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज. आर्टिफिशियल सैटेलाइट. ये क्वेश्चन मैंने वीडियो लेक्चर में भी समझाया, लेकिन दोबारा समझाते हैं. आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट. कैसा घूम रहा है? इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ ए रेडियस कितना? 4250 मीटर
this is center O, A, this is the radius R. Calculate the speed, it takes the time t is equal to 24 hours. आसान क्वेश्चन है. This is in a kilometer, not a meter, it is given in kilometer. तो क्या कैलकुलेट करना है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. तो डिस्टेंस कैसे गया, सर्कुलर डिस्टेंस कैसे निकलते हैं, 2πr डिवाइड बाय टाइम कितना लगा 24 आवर्स. तो ये आएगा किलोमीटर पर आवर अगर चेंज नहीं किया तो. सो 2 दिस इज ए 3 दिस इज ए 3.14 इंटू इसका रेडियस कितना है, रेडियस है 42250 किलोमीटर डिवाइड बाय टाइम कितना लगा 24 आवर्स. सो दिस आंसर विल बी किलोमीटर पर आवर. स्पीड इक्वल टू, ये कैलकुलेट करना है. आसान क्वेश्चन है. तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, सभी डिस्कस करना है और अपना नोटबुक में लिखिए. अपना नोटबुक ठीक से मेंटेन करो. सभी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए एक्सरसाइज का. और इनटेक क्वेश्चन जो है तुम लोग अपना कॉपी में सॉल्व करो. कोई क्वेश्चन अगर दिक्कत आता है तो सॉल्व करो. और इसी के साथ ये लेसन यही ख़त्म होता है. इसके ऊपर मैं एक टेस्ट अनाउंस करूँगा, तो पढ़ते रहिए. और टेस्ट अच्छी तरह से अपेयर करें तो मैक्सिमम स्कोर कौन लाता है, अगर अच्छी तरह से लेसन समझ गए तो पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. तो इसी के साथ थैंक यू.